हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Defendant number 1, appellant is in the regular second appeal against the judgment passed by the learned first appellate court decreeing the suit filed by the plaintiffs challenging judgment and decree dated 23/4/1994 suffered by their mother in favor of one of her son full stop para. In the considered view of this court, following substantial questions of law arises for determination by this court: para. First, whether a judgment and decree passed by the court acknowledging prior family settlement requires registration, particularly when the consent decree is with regard to the property involved in the suit, para. Second, whether children after having separated from the family can continue to claim to be members of the same family for the purpose of defeating a subsequent family settlement arrived at between mother and son, para. Both the courts have concurrently found that the plaintiffs have failed to prove that the judgment and decree was result of impersonation, full stop. There is no further appeal against the aforesaid finding, full stop. Plaintiffs as well as defendants are children and grandchildren of Srimati Nihal Kaur, full stop. It has come in evidence that the family had separated and at the time of consolidation each one was allocated separate portions of the property, full stop. The daughters, who are plaintiff numbers 3 to 5, were married long back, full stop, para. Learned First Appellate Court has reversed the judgment of the trial court on two grounds, para. A. Judgment and decree dated 23/4/1994 was required to be registered, full stop, para. B. Other members of the family were not joined at the time of family settlement, full stop, para. This court has heard the learned counsel for the parties at length and with their able assistance gone through the judgments passed by both the courts below and the record, full stop, para. As regards first reason given by the trial court, it may be noted that the judgment and decree dated 23/4/1994 is acknowledging a prior family settlement which took place between the parties to the suit, full stop. Such decree does not require registration, full stop. This issue has already been decided by this court in the case reported as 2017-4 PLR 729, titled as Dhyan Singh and others versus Mohinder Singh and others, full stop. Hence, no further discussion on this aspect is required, full stop, para. As regards second reason given by the trial court, it may be noted that both the courts have found that Srimati Nihal Kaur at the time of consolidation of holdings
in the year 1968-69 and thereafter separated all the children and allocated separate parcels of land to male members, whereas daughters were married and settled in their in-laws' family full stop. It has also come in evidence that Ram Kishan used to stay with her mother Srimati Nihal Kaur, which fact is not disputed by the plaintiff full stop. It has also come in evidence that Ram Kishan, defendant number 1 appellant, had suffered injury which resulted into chopping of his arm full stop over. तो फ्रेंड्स ये 90 की स्पीड में हो गया है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब हो जाएगा क्या कहते हैं आपका CBT, तो उसके बाद हम स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। 95 से 100 के बीच में रखेंगे फिर, ठीक। आपका अपना रिव्यू बता दीजिएगा, कुछ लोग अगर मतलब चाहते हो तो स्पीड बढ़ाना, ठीक है। इसलिए क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो स्पीड बढ़ा देंगे तो आप लोग थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि होना 80 की स्पीड में, तो क्यों ना ज़्यादा में किया जाए, ठीक है। बता दीजिएगा, आप लोग की कॉन्सेंट के अलावा हम नहीं करेंगे ऐसा। चलिए नाम जो आया है, नाम बात कर लिया जाए, कौन सा है। ध्यान सिंह आया है ना। ध्यान के लिए डी में इनका हुक लगा दीजिए अबव द लाइन ध्यान, ठीक है। ध्यान और सिंह अलग से बनेगा, आप जानते ही है। मोहिंदर के लिए एम बनाइए, एच डाउनवर्ड, एच की डबलिंग कर दीजिए और एन का हुक लगा दीजिए। महेंद्र भी यही हो जाएगा। महिंदर भी यही हो जाएगा। एच की डबलिंग में, एन के हुक में, लास्ट में आफ्टर में ई की वॉवल लगा दीजिए तो महिंदर, ठीक है। मोहिंदर, और ये है, अगर मोहिंदर आपको याद करना है तो एम के आफ्टर में ओ की वॉवल भी लगा दीजिएगा, ठीक है। महिंदर, महेंद्र, मोहिंदर, ये सब एक जैसे बनेगा, ठीक। और कुछ नहीं है। निहाल कौर, निहाल के लिए एन डाउनवर्ड एल बना दीजिए, ठीक है। ये निहाल हो जाएगा। एच ओमिट हो जाएगा या 2 डॉट्स लगा दीजिएगा एच वाली, और कौर तो बन जाएगा के डाउनवर्ड आर, कार की तरीके कौर बन जाएगा, ठीक है। और राम किशन, राम बना के, राम तो बनेगा डाउनवर्ड आर एम, और किशन अलग कर दीजिए, के सर्किल, एन का स्ट्रोक, ठीक है। राम किशन हो गया। चलिए ये डिक्टेशन का तो हो गया मैटर क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्या कहते हैं कमेंट्स की तरफ। तो कमेंट्स तो हम कोशिश करते हैं कि सारे आपके आंसर्स हम दे दें, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, कभी थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको टाइम पे मिल जाए। CBT टेबल जो हाँ टेबल ही दिया होता है, टेबल ही दिया होगा, टेबल देगा, टेबल के क्वेश्चंस आएंगे, टेबल बनाने के लिए भी कहेगा, उसमें फार्मूलाज लगाने के लिए भी कहेगा, ठीक है। उबंटू सॉफ्टवेयर देखिए, जिसका जो भी सिस्टम रहता है किसी भी कोर्ट में, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्ज़ाम उसी पे हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उबंटू, मैक्सिमम उबंटू यूज़ होता है, उबंटू पे ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, परेशान मत होइए। और हाँ, आपको अच्छा लगा समझाना, उसके लिए धन्यवाद। स्किल 17-18 को नहीं है, ठीक है। 17-18 को स्किल नहीं है, CBT है, ठीक है। 17-18 को स्किल तैयार करके मत नहीं जाना है आपको, CBT तैयार करके जाना है। कहाँ हैं आप लोग, ठीक है। मोटिवेट तो ठीक है हम करते ही हैं और करते भी रहेंगे। जो भी डाउट हो आप बताइएगा और मन लगा के तैयारी कीजिए। वेलकम जिन्होंने भेजा है। कंप्यूटर में क्या पूछेगा, देखिए हमने लिख के भी दिया है, हम मुझसे बता भी दे रहे हैं कि CBT में एक्सेल आता है बहुत ज़्यादा। एक्सेल डीप में आएगा कि नहीं आएगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपसे एक्सेल का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको छोड़े ना। और सबसे बड़ी चीज़ है स्पीड। 10 में से 4 नंबर तो लाना आसान था, 10 में से 6 नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उन्होंने अपना क्राइटेरिया बढ़ा दिया और फॉर्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो 4-5 डिक्टेशन तो फ़िलहाल मुश्किल है, कल इसका आंसर हमने दे दिया था, ठीक है। और रही बात एक्सेल शीट देने की, तो हम दे देंगे, थोड़ा टाइम की कमी है, इस वजह से दिक्कत हो रही है,
ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, जो भी चीज़ें होंगी हम बताते रहेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस रेगुलर करिएगा। सीबीटी के चक्कर में शॉर्ट हैंड मत छोड़िएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है इजी, लेकिन रेगुलर करने वालों के लिए इजी है, जो छोड़ते पकड़ते हैं उनके लिए दिक्कत है। ठीक है ना। तो सारा अपना फ़ोन फान बंद कर दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम बाद में करिएगा, एग्ज़ाम को पहले एग्ज़ाम की तरह दीजिए और शॉर्ट हैंड में मन लगाइए। 6 घंटे शॉर्ट हैंड में तो देना ही देना होता है। जो 1 घंटे 1.5 घंटे वाले हैं ना, उनसे हम बस यही कहना चाहते हैं कि भैया क्या कर रहे हो। अगर पूरे दिन पूरे साल की मेहनत अगर 5 मिनट में रंग लानी है, तो उसको 1 घंटे पढ़ के क्यों ज़ाया कर रहे हो। ठीक है। तैयारी करिए और लग के करिए, और थोड़ा सीरियस होके करिएगा। 6-7 घंटे की कम की पढ़ाई फ़ायदा नहीं देती है, इतना जान लीजिए। ठीक है। जो सच है वो सच है। कुछ लोग एक्सेप्शन में ऐसे केसेस होते हैं जो कुछ देर पढ़ते हैं 1-1.5 घंटे और एग्ज़ाम टॉप कर जाते हैं या मिस्टेक्स कम आती हैं। ठीक है। ऐसे कुछ ही लोग हैं, वो गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। तो भैया गॉड गिफ्टेड लोगों से कंपैरिजन मत करिए, और ख़ुद को गॉड गिफ्टेड मानने की गलती भी मत कीजिएगा। ठीक है। गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छी बात है, सभी को गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिलें, हम यही चाहते हैं। लेकिन इसको मान के ओवर कॉन्फिडेंस मत आ जाइए कि हम इतने में पढ़ते हैं, इतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है। 90% लोगों को मेहनत करके मिलता है। ओके। तो हल्का फुल्के में एग्ज़ाम मत लीजिए। आप लोग काफ़ी सालों से इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। उसके बाद 1-2 दिन 5 मिनट के एग्ज़ाम के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप एग्ज़ाम टाइम में किसी काम में फंस गए या प्यार मोहब्बत में फंस गए तो क्या कीजिएगा। ठीक है। इसलिए सीरियस हो जाइए। ठीक है। मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बढ़ाते जाइए, करते जाइए। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है, और कुछ नहीं। लाइक करते जाया करिए, जितने लोग देखते हैं क्या जाता है लाइक करने में। ठीक है। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, सी यू।